اللہ رب العزت اپنے مقدس قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، الرجال قوامون علی النساء، رب فرماتا ہے میں نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا۔ حضرات، اللہ رب العزت نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنا کے بھیجا۔ حضرات محترم، اگر ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں معلوم چل جائے گا کہ عورتوں کو اپنے شوہروں کی کس طریقے سے فرما برداری کرنا چاہیے، عورتوں کو شوہروں کی باتوں پر کیسا عمل کرنا چاہیے۔ یہ مدینہ شریف ہے، مدینہ شریف میں خاتون رہتی تھی، شوہر نے باہر جانے کا ارادہ کیا، پردیس جانے کا ارادہ کیا، جو ہی گھر سے باہر نکلا دہلیز پر اپنی عورت سے کہا، اے میری بیوی سن، میں باہر جا رہا ہوں پردیس پیسہ کمانے کے لیے، مجھ سے وعدہ کر کہ میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر کبھی قدم تو نہیں نکالے گی۔ شوہر نے جی ہی اتنا کہا، عورت نے کہا، اے میرے شوہر سن لو، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں تمہاری اجازت کے بغیر گھر سے باہر کبھی قدم نہیں نکلے گا۔ وعدہ کر لیا۔ شوہر باہر چلا گیا کمانے کے لیے، ادھر لڑکی گھر میں ہے، بیوی گھر میں ہے۔ اچانک اس کے والد بیمار ہوا۔ والد نے کہا، اے میرے بیٹے جاؤ، میری اکلوتی بیٹی ہے جو میرے گھر کا چشم و چراغ تھی، جاؤ تم اسے بلا کر کے لاؤ، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جی ہی بابا جان نے اتنا کہا، چھوٹا بھائی دوڑتا ہوا بہن کے گھر پہنچا۔ پہنچنے کے بعد کہتا، میری بہن سن، ابو کی طبیعت خراب ہے، وہ تجھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ بہن نے کہا تھا، میرے بھائی سنو، یہ تو ٹھیک ہے کہ بابا جان کی طبیعت خراب ہے، لیکن سنو، میں نے اپنے شوہر سے وعدہ کیا تھا کہ اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر کبھی قدم نہیں نکلے گا، میں نہیں جا سکتی ہوں۔ بہن نے گھر جانے سے انکار کر دیا۔ بھائی دوڑتا ہوا باپ کے پاس آیا، والد کو بتایا، اے میرے بابا جان، بہن نے آنے سے انکار کر دیا۔ جب باپ نے سنا کہ بیٹی نے آنے سے انکار کر دیا، باپ کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، آنکھیں اشکبار ہو گئیں، آنکھوں میں آنسو نکلنے لگے۔ خیر، باپ نے صبر کیا۔ چند دنوں کے بعد والد کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی، اتنی زیادہ خراب کہ بچنے کا کوئی چانس نہیں، اتنی زیادہ طبیعت خراب کہ بچنے کا کوئی چانس نہیں۔ باپ نے اپنے بڑے بیٹے کو بلایا، بلانے کے بعد کہا، اے میرے بیٹے جا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب میں زندہ نہیں رہوں گا، اب میں مر جاؤں گا، اس لیے میری آخری تمنا یہ ہے، میری آرزو یہ ہے، میری خواہش یہ ہے کہ مرنے سے پہلے اپنی بیٹی کا ایک مرتبہ میں چہرہ دیکھ لوں۔ اللہ اکبر، جا تو میری بیٹی تک خبر پہنچا اور اس کو لے کر کے آ۔ بڑا بھائی اپنے والد محترم کی باتوں کو مان کر اپنی بہن کے گھر جاتا ہے۔ جانے کے بعد کہتا، بہن، چھوٹا بھائی آیا تھا، والد محترم بیمار ہے، تو نے جانے سے انکار کر دیا، اب میں آیا ہوں، ابو کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، ایسا لگتا ہے کہ والد محترم بچیں گے نہیں۔ بہن، والد محترم نے تجھے دیکھنے کے لیے بلایا ہے۔ بہن نے اتنا سنا کہ ابو بہت بیمار ہے۔ بہن نے کہا، اے میرے بھائی سنو، یہ تو بات ٹھیک ہے کہ ابو کی طبیعت زیادہ خراب ہے، لیکن سنو، جب میرا شوہر پردیس کمانے کے لیے جا رہا تھا، میں نے اپنے شوہر سے وعدہ کیا تھا کہ اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نہیں نکلے گا۔ بہن نے اتنا کہا، آنکھوں میں آنسو نکلنے لگے۔
सावन भादों की तरह आंसू बरसने लगे। लेकिन बहन ने भाई से कहा, मैं अपने शोहर की इजाजत के बगैर घर से बाहर नहीं जा सकती हूं, इसलिए कि उस वक्त मोबाइल नहीं था, टेलीफोन नहीं था, वायरलेस सिस्टम नहीं था, लेकिन अपने शोहर की बातों पर अमल कर रही है। घर जाने से इनकार कर दिया। बड़ा वाला भाई दौड़ता हुआ बाप के पास जाता है। जाने के बाद कहता, अब्बू, बहन ने अपने शोहर से वादा किया था, वो उसकी मर्जी के बगैर घर से बाहर नहीं आएगी। बाप ने सुना, बाप की दिल की धड़कनें और तेज बढ़ जाती हैं। बाप ने दिल में ख्याल किया, परवरदिगार आलम, मेरी अकेली बेटी थी, बाकी तो बेटे हैं, मेरे घर का चश्मो चराग वही थी। मैं बीमार हूं, 2 मरतबा में खबर पहुंचा चुका हूं, बेटी ने आने से इनकार कर दिया है। ये वही बेटी है जिसे मैंने डोली में जब बिठाया था, मैं बेहोश होकर के जमीन पर गिर गया था, लेकिन आज मेरी बेटी ने आने से इनकार कर दिया। अल्लाह अकबर। अब बाप कश्मकश में डूबा हुआ है, यही सोच रहा है कि बेटी ने आखिरकार आने से क्यों इनकार कर दिया है। अब बाप इतना बीमार हुआ, इतना सख्त बीमार कि बाप की रूह कब से उनसरी से परवाज कर जाती है। अल्लाह अकबर। वालिद की रूह कब से उनसरी से परवाज कर गई, इंतकाल हो गया। जब बाप का इंतकाल हुआ, भाइयों के अंदर ताबे जबत ना रही, आंखों से आंसू बहने लगे। दौड़ता हुआ छोटा वाला भाई पहुंचा, बहन के दरवाजे पर जाने के बाद कहता, बहन, वालिदे मोहतरम बीमार थे, हम तुझे बुलाने के लिए आए, तूने जाने से इनकार कर दिया। बड़े भाई बुलाने के लिए आए, तूने जाने से इनकार कर दिया। बहन सुन, अब तो अब्बू जान का इंतकाल हो गया। बहन, अब तो वालिदे मोहतरम का इंतकाल हो गया है, चल अब तो आखिरी बार अपने वालिद का चेहरा देख ले। जब बहन ने इतना सुना कि बाप का इंतकाल हो गया, जमीन पर बेहोश होकर के गिर जाती, अर्ज करती, परवरदिगार, मेरे अब्बू की तबीयत खराब हुई, मैंने जाने से इनकार किया। बड़ा भाई बुलाने आया, जाने से इनकार कर दिया। ऐ मौला, मैं क्या करूंगी, मैंने अपने शोहर से वादा किया है कि उसकी मर्जी के बगैर घर से बाहर कदम नहीं निकलेगा। ऐ परवरदिगार आलम, अब तो मेरे वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया। रोती रोती बहन जमीन पर बेहोश होके गिर गई। जब होश आया, अपने भाई से कहा, मेरे भाई सुनो, जाओ रसूलुल्लाह की बारगाह में चले जाओ, उनसे मसला पूछ के आओ कि मैंने अपने शोहर से वादा किया है, उसकी मर्जी के बगैर घर से बाहर कदम नहीं निकलेगा। जाओ आकाए करीम की बारगाह में जाओ, उनसे मसला पूछ के आओ। बड़ा भाई दौड़ता हुआ जाता है सरकार की बारगाह में। जाने के बाद कहता, या रसूल अल्लाह, मेरे वालिदे मोहतरम बीमार हुए, बहन ने जाने से इनकार कर दिया है, अब मेरे अब्बू जान का इंतकाल हो गया है, क्या मेरी बहन घर पे जा सकती है? लेकिन बात यह है कि उसने अपने शोहर से वादा किया था कि उसकी इजाजत के बगैर घर से बाहर कभी कदम नहीं निकलेगा। या रसूल अल्लाह, वालिद बीमार हुए, बहन ने जाने से इनकार कर दिया है, अब तो अब्बू जान का इंतकाल हो गया है। या रसूल अल्लाह, क्या मेरी बहन अपने शोहर की इजाजत के बगैर घर से बाहर निकल सकती है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जाओ अपनी बहन से कह दो कि वो अपने शोहर की बातों की फर्मा बरदारी करे, अपने शोहर की बातों पर अमल करे, अपने शोहर की बातों पर अमल करती रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना फरमाया। अब भाई दौड़ता हुआ बहन को आकर के बताता है। बहन घर के अंदर से हम जाती, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, लेकिन अपने घर पे नहीं जाती है, इसलिए कि अपने बाप से वादा किया है उसकी इजाजत के बगैर घर से बाहर, इसलिए कि अपने शोहर से वादा किया है उसकी इजाजत के बगैर घर से बाहर कदम नहीं निकलेगा। वादा पूरा कर रही है। अब भाई दौड़ता हुआ घर पे पहुंचता है। जाने के बाद लोगों से कहता है, बहन ने आने से इनकार कर दिया है। जो भी सुनता है लोग लानो तान करते हैं। कोई कहता है लड़की बड़ा संग दिल है, लड़की बड़ा कठोर है, बाप बीमार हुई, आने से इनकार कर दिया है। बड़ा भाई बुलाने गया, आने से इनकार कर दिया। छोटा भाई बुलाने के लिए गया, बहन ने आने से इनकार कर दिया। कितनी संग दिल लड़की है कि अपने बाप के इंतकाल पर भी अपने घर नहीं आ रही है, अपने बाप के इंतकाल पर भी नहीं
आ रही है, लोग लानो तान कर रहे हैं, जनाजा को दफन किया गया, लोग आकर के लानो तान कर रहे हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ, मेरे सरकार ने फरमाया, आए लोगों सुनो, लड़की को लानो तान, लड़की पर लानो तान ना भेजो, इसलिए कि लड़की संग दिल नहीं है, लड़की कठोर नहीं है, लड़की ने अपने शोहर की बातों पर अमल किया है, अल्लाह के कुरान पर अमल किया है, शरीयत मुस्तफा पर अमल किया है। सुन लो, इसका बाप जहन्नम में जाने का हकदार था, लेकिन इसकी बेटी ने ये शरीयत पर अमल किया है, कुरान पे अमल किया है, उसी शरीयत पर अमल करने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसकी बेटी की वजह से इसके बाप को जन्नत का हकदार बना दिया है। सुभान अल्लाह। ऐ मेरी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, जरा अंदाजा लगाइए, बेटी ने शरीयत पर अमल किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल किया, अपने शोहर की फरमा बरदार बन के रही। अल्लाह रब्बुल इज्जत को उसका यह अमल करना इतना पसंद आ गया कि उसका बाप जहन्नम में जाने का हकदार था। लड़की के शरीयत पर अमल करने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके बाप को जन्नती बना दिया। सुभान अल्लाह। लेकिन इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, आज हमारे हाल क्या है? अगर भाई आ जाए घर पे गाड़ी लेकर के बहन को लेने के लिए, शोहर से पूछना भी नहीं, सारी तैयारियां शुरू, शोहर की इजाजत के बगैर घर से कदम निकाल दिया। हदीस शरीफ में है, जब भी औरत शोहर की इजाजत के बगैर घर से बाहर निकलती है, उस पर अल्लाह उसके फरिश्ते की लानत शुरू हो जाती है। अल्लाह अकबर। इसलिए इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, अपने शोहरों की इजाजत के बगैर घर से बाहर ना जाया करो, शोहरों से इजाजत ले लिया करो। इसलिए किताबों में लिखा है कि औरत पर मर्द का इतना बड़ा हक है, इतना बड़ा हक है कि अगर शोहर के जिस्म से खून या पीप निकले, औरत अपनी जबान से चाटे, फिर भी अपने शोहर का हक अदा नहीं कर सकती है। लेकिन अब खून और पीप चाटने की बात तो बहुत दूर की है, जरा अपना थूक चटा के देखना, एक थप्पड़ पड़ेगा तुम पे, सही हो जाओगे। हक बता रहा हूं, इतना बड़ा है कि अगर शोहर के जिस्म में फोड़ा निकले और उससे जो ममाद, जो पीप निकलता है, औरत जबान से चाटे, फिर भी अपने शोहर का हक नहीं अदा कर सकती है। अल्लाह अकबर। लेकिन नौजवानों कभी चटवाने की कोशिश ना करना, लेकिन जिस तरीके से शोहर का तुम पे हक है, तो औरतों, मर्दों का जैसे औरतों पर हक है, तो औरतों का तुम पे भी हक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जैसा खाओ वैसा खिलाओ। तुम तो गए वहां होटल पे बिरयानी हौक के आ गए हो, तुम तो गए वहां कबाब खा के आए गए हो, लेकिन तुम्हारी बीवी, तुम्हारी मेहरुआ घर के अंदर चटनी खा रही है, ये भी तुम्हारे लिए सही नहीं है। आका करीम फरमाते हैं, जैसा खाओ वैसा अपनी औरतों को खिलाओ, जैसा पहनो वैसा अपनी औरतों को भी पहनाओ। तो ये ना समझ लेना तुम जींस की पैंट पहनते हो, अपनी औरतों को भी जींस की पैंट पहनना शुरू कर देना। मतलब ये, जैसा पहनो वैसा अपनी औरतों को पहनाओ, यानी जितनी कीमत का कपड़ा तुम अपने लिए पसंद करते हो, उतनी कीमत का कपड़ा अपनी औरतों के लिए भी पसंद किया करो। लेकिन अब औरतों के अंदर भी नखरे बहुत है, इनके अंदर भी बहुत नाज नखरे हैं। अगर सूट तुम 500 का लेके आए हो, अगर तुमने 500 का ही वो सूट बता दिया, तो तुम्हारी बीबी को वो सूट पसंद नहीं आएगा। अगर वही 500 वाला तुम 1000 का बताओगे, तब तुम्हारी बीबी को पसंद आएगा। तो इस्लामी भाइयों, अपनी औरतों को सताओ मत, इन्हें गालियां ना दिया करो, इन्हें मारा ना करो, इन्हें सताया ना करो, इसलिए कि अपना घर बार छोड़ना आसान नहीं होता है। औरत ने अपना घर छोड़ा तुम्हारे लिए, अपने बाप को छोड़ा तुम्हारे लिए, औरत ने अपनी माँ को छोड़ा तुम्हारे लिए, औरत ने अपने भाइयों को छोड़ा तुम्हारे लिए, अपनी बहनों को छोड़ा तुम्हारे लिए, अपनी सहेलियों को छोड़ा तुम्हारे लिए, लेकिन तुम बात बात पर अपनी औरत को ताने दिया करते हो, बात बात पर अपनी बीवियों को मारा करते हो। मेरे इस्लामी भाइयों, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा सख्त मना फरमाया कि औरतों को सताया ना करो, इन्हें मारा ना करो, इन्हें गालियां ना दिया करो। मियां बीवी को मालूम घर में कैसे रहना चाहिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अपने सामने रखिए। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने एक प्याले में पानी पिया, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसी प्याले में पानी मंगाया।
जी हाथ में प्याला लिया, लेने के बाद कहते आयशा ये बताओ तुमने अपने होठों को किस जगह पर लगा करके पानी पिया है? अरे आयशा ये बताओ तुमने किस जगह पर अपने होठ लगा करके पानी नोश किया? हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज करती हैं, ऐ मेरे सरताज मैंने इस जगह पर अपने होठों को लगा करके पानी पिया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी जगह पर अपने लबों को लगाया और लगा करके पानी नोश फरमाया। सुभान अल्लाह। मियां बीबी अगर इस तरीके से घर में रहे तो कभी घर के अंदर झगड़े नहीं होंगे, कभी घर के अंदर फसाद पैदा नहीं होगा। तो इसलिए इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, तुम्हें दुनियावी औरत नहीं बनना है, तुम्हें तो कनीज़े फातिमा बन के जमाने में चमकना है। नौजवानों तुम्हें भी हीरो नहीं बनना है, अगर बनना चाहते तो गुलाम मुस्तफा बन के जमाने में चमको, जो हमें देखे वो देख करके कहे मुस्तफा का उम्मती है ये, मुस्तफा का शहदाई है ये, मुस्तफा का नाम लेवा है ये, मुस्तफा का दीवाना है ये। हमें इस तरीके से जिंदगी गुजारना चाहिए कि लोग हमें देख करके कहें रसूलुल्लाह का गुलाम कितना अच्छा है। इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, अपने शोहरों की खिदमत क्या करो, नमाजें पढ़ा करो, लेकिन तुम्हारे पास इतना वक्त कहां है नमाज पढ़ने का? पढ़ो किताबें, मालूम चलेगा। पैगंबर की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा, इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, पैगंबर की बेटी फातिमा ज़हरा की जिंदगी को अपने सामने रखिए। बच्चों की परवरिश भी करती थी, तरबियत भी करती थी, अपने शोहर की दिन भर खिदमत भी करती थी। इबादत का आलम यह था, जब शाम का वक्त होता जमीन पर मुसल्ला बिछा देती। इबादत का आलम यह होता था, सजदा इतना तवील कर देती थी कि अज़ान फज्र की आवाज कानों में पहुंचती थी। जब अज़ान फज्र की आवाज कानों में पहुंचती थी तो पैगंबर की बेटी फातिमा ज़हरा ज़ारो कतार रोती थी, अर्ज करती थी, परवरदिगार ऐ मालिको मौला, तूने इतनी छोटी छोटी रातें क्यों बनाई? ऐ मौला, एक रात इतनी बड़ी बना दे, इतनी लंबी बना दे, इतनी लंबी बना दे कि जिस रात में रसूलुल्लाह की बेटी पूरा सजदा तो अदा कर ले। सुभान अल्लाह। लेकिन इस्लाम की शहजादियों, इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, तुम्हारे हालात क्या है? आज अगर फजर की अजान हुई तुम्हें पता नहीं, शाम को जब सोती हो जब तक 2 सीरियल 2 ड्रामे तुम देख नहीं लोगी, तुम्हें नींद नहीं आएगी, और सुबह उठती हो 8 बजे 9 बजे 10 बजे, जी उठ के बैठती हो तो ये कहती होगी, या अल्लाह तूने इतनी छोटी छोटी रातें क्यों बनाई जिसमें मेरी नींद भी पूरी नहीं हो रही है। फातिमा की जिंदगी को देखो। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु, पैगंबर की बेटी फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा कमरे में, तीसरा कोई नहीं। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत फातिमा ज़हरा की रान पे हाथ रखा। रखने के बाद कहते हैं, फातिमा जब से तुम मेरे निकाह में आई हो तुमने पेट भर के खाना नहीं खाया। अरे फातिमा, जब से तुम मेरे निकाह में आई हो तुमने पेट भर के खाना नहीं खाया। जब तुम्हें भूख लगती है तो खजूर की गुठलियां पीस लेती हो, नमक लगा के खा लेती हो। अरे फातिमा, तुमने कभी भी मुझसे कपड़ों की डिमांड नहीं की है। 17 पैबंद लगा करके चादर तुमने इस्तेमाल किया है। अरे फातिमा सुनो, आज अली तुमसे खुश है, जो तुम्हें मांगना है मांग लो, अली तुम्हें अता कर देगा। अली फरमाते, फातिमा जो तुम्हें मांगना है मांग लो, आज अली तुम्हें अता करेगा। बिला कैद हजरत अली ने फरमाया, जो मांगना है मांग लो, अली अता कर देगा। पैगंबर की बेटी फातिमा ज़हरा ने दुआ की, मौला मेरे शोहर अली की उम्र में बरकतें अता फरमा दे। हजरत अली फरमाते, फातिमा आज दुआओं से काम नहीं चलेगा, आज तो तुम्हें मांगना ही पड़ेगा, फातिमा मांगो। हजरत फातिमा ज़हरा ने फिर अपने हाथों को उठाया, अर्ज करती, मौला मेरे शोहर अली की उम्र में बरकतें अता फरमा दे। पहले फरमाया मेरे शोहर की कमाई में बरकतें अता कर दे, फिर फरमाया मेरे शोहर अली की उम्र में बरकतें अता फरमा दे। अली फरमाते, फातिमा आज तो तुम्हें मांगना ही पड़ेगा।
आजकल की अगर हमारे यहां कोई औरत हो, शोहर अगर खुश है, तुम एक दिन आजमा लेना, औरत के पास आकर के एक पर्ची का पेमेंट तुम्हें मिल जाए या 50,000 तुम्हारे पास हो तो आकर के अपनी औरत को आजमा लेना। घर में आकर के कहना मेरी बीबी सुन, 50,000 रुपए मेरी जेब में है, मैं तुझसे बड़ा खुश हो गया हूं, बोल तुझे क्या चाहिए। तो आपकी बीबी फौरन कहेगी मेरे शोहर सुन लो, 10,000 मुझे दे दो ताकि मैं पर्स में रख लूं, और 40,000 का सोने का गले का हार लाके दे दो। सच कह रहा हूं मैं, आजमा लेना आप। लेकिन अली ने फरमाया फातिमा मांगो क्या मांगना है। हजरत फातिमा ने मांगा तो क्या मांगा, मांगने का तरीका देखिए, मांगने का अंदाज देखिए। पैगंबर की बेटी फातिमा ज़हरा अर्ज करती है, ऐ मेरे शोहरे मोहतरम मैं तुमसे मांगू क्या, वाकई तुम अता कर दोगे। हजरत अली ने फरमाया ऐ फातिमा मांग के तो देखो, आज तुम जो भी मांगोगी आज तुम्हारा शोहर अली तुम्हें अता कर देगा। हजरत फातिमा ने मांगा, क्या मांगा। हजरत फातिमा कहती है ऐ मेरे शोहरे मोहतरम सुन लो, मैं तुमसे ये मांगना चाहती हूँ जब मेरा इंतकाल हो जाए, मेरा विसाल हो जाए, मेरा जनाजा दिन में नहीं बल्कि रात में निकाला जाए। हजरत अली ने पूछा फातिमा ऐसा क्यों। वो मेरी माँ बहनें गौर से सुन ले, जो बेपर्दा बाजारों में जाती है, जो बेपर्दा घर से इधर से उधर घूमा करती है, जो बेपर्दा मार्केटों में घूमा करती है, वो मेरी माँ बहनें गौर से सुन ले। हजरत अली ने पूछा था फातिमा ऐसा क्यों। हजरत फातिमा ज़हरा ने अर्ज किया था ऐ मेरे शोहर सुन लो, कसम खुदा की आज तक मेरे चेहरे पर, मेरे जिस्म पर किसी गैर मर्द की नजर नहीं पड़ी है। मैं ये चाहती हूँ कि मरने के बाद भी मेरे जिस्म पर, मेरे कफन पर किसी गैर मर्द की नजर ना पड़ सके। अल्लाह अकबर। इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, जरा अंदाजा लगाइए, ये पैगंबर की बेटी फातिमा ज़हरा है जिनके जिस्म पर किसी गैर मर्द की नजर नहीं पड़ी है। लेकिन आज हमारे क्या हालात है, हम अगर बनाव सिंगार करेंगे तो अपने शोहर के लिए नहीं बल्कि गैरों को दिखाने के लिए। तजर्बा है इस बात का मुझे कि जब तक घर में रहेंगी मैली कुचैली गंधैली बन के रहेंगी। नौजवानों तुम तो जानते होगे, जबकि हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम अपने हुस्न की जीनत करो, बनाव सिंगार करो, लेकिन किसी गैर मर्द के लिए नहीं बल्कि अपने अपने शोहरों के लिए किया करो। लेकिन आज कहां, घर में रहेंगी मैली कुचैली गंधैली बन के रहेंगी। शोहर बेचारा दिन भर मजदूरी करता है, कामोकाज करता है, शाम को जब घर वापस आता है तो ख्याल करता हो सकता घर पे जाए बीबी के हाथों से मुझे पानी मिल जाए। लेकिन पानी कहां वो दे रही है। बिटिया पानी लाए अपने पापा को पिलाई दे, बिटिया पानी ले आओ अपने अब्बू को पिला दो। बड़ा तमन्ना थी बहार फसल गुल हम भी देखेंगे, मगर उसने अंगूठा दिखा दिया। मेरी मां बहनों सोचो, मियां बीबी के दरमियान जो नफरतें पैदा होती है वो इसी बुनियाद पर कि तुम घरों में मैली कुचैली गंधैली बन के रहती हो। घरों के अंदर साफ और शफाफ रहा करो, जब तुम्हारा शोहर देखे तुम्हें तो उसका दिल खुश हो जाए, सारी नफरतें इंशाल्लाह खत्म हो जाएंगी, सारी नफरतें इंशाल्लाह खत्म हो जाएंगी। तो इसलिए इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, शरीयत मुस्तफा पर अमल करने की कोशिश किया करो। हजरत फातिमा की जिंदगी को अपनी नजरों के सामने रखा करो कि पैगंबर की बेटी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी है। काश तुम राबिया बसरी का चलन अपना लो, काश तुम राबिया बसरी का चलन अपना लो, खुद खिंचा आएगा चला काबा जियारत के लिए। हजरत राबिया बसरी की जिंदगी को देखिए कि हजरत राबिया बसरी की जिंदगी क्या है कि जिनकी जियारत के लिए अल्लाह का मुकद्दस घर चल के आ गया। हजरत इब्राहिम बिन अदहम जिन्होंने मन्नत मांगी थी, एक कदम रखते थे 2 रकात नमाज नफल पढ़ते थे, फिर कदम रखते थे फिर 2 रकात नमाज नफल पढ़ते थे। सफर करते करते 1-2 दिन नहीं 14 साल तक मुतवातिर सफर करते रहते हैं, 14 साल तक सफर करते रहते हैं। काबा शरीफ को देखने के लिए जब करीब पहुंचते हैं, हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने देखा कि काबा शरीफ अपनी जगह से चल दिया है। काबा अपनी जगह से चल दिया, जाकर के जंगल के करीब पहुंच के रुक जाता है। अल्लाह ने काबे की दीवार को हुक्म दिया, काबे की दीवार फट जाती है। अल्लाह की बंदी राबिया बसरी काबे के अंदर चली गई, इबादत करने लगती है। इब्राहिम बिन अदहम काबे के पीछे पीछे चल रहे हैं। क्या देखते हैं, एक खातून है जो काबे के अंदर अल्लाह की इबादत कर रही है। हजरत इब्राहिम बिन
अदहम ने राबिया बसरी से पूछा, अरे राबिया बसरी ये बताओ तू कौन सा ऐसा नेक काम करती है, कौन सा ऐसा अमल करती है जिसकी बुनियाद पर काबा तेरी जियारत करने के लिए आ गया है। मैंने 14 साल तक सफर किया है, हर कदम पर 2 रकात नमाज नफल पढ़ता हुआ आया था काबा देखने के लिए। जो ही काबे के करीब में चल करके पहुंचा हो, जो ही काबे के करीब गया, काबा चल के तेरी जियारत के लिए आ गया है। ए खातून ये बता कौन सा तू ऐसा काम करती है। तो राबिया बसरी ने पूछा था, इब्राहिम बिन अदहम ये बताओ तुम्हारा मकसद क्या है। इब्राहिम बिन अदहम ने कहा मेरा मकसद काबा देखना था। हजरत राबिया बसरी ने कहा, इब्राहिम बिन अदहम सुनो, तुम्हारा मकसद काबा देखना था, मेरा मकसद काबा देखना नहीं है, बल्कि जिसने काबे को बनाया है उस रब का दीदार करना मकसद है। तो ये अल्लाह की बंदी हजरत राबिया बसरी हैं, जिनकी जियारत के लिए काबा शरीफ चल के आ गया। सुभान अल्लाह। काश तुम राबिया बसरी का चलन अपना लो, काश तुम राबिया बसरी का चलन अपना लो, खुद खिंचा आएगा चला काबा जियारत के लिए।